Well, So, good afternoon. yeah, Oh, sorry, sir. yeah, Mohit. Yeah. So, good afternoon to one and all present here in this special webinar. At the outset, I, Mohit Kishore Vats, Assistant Professor, DME Media School, as part of Delhi Metropolitan Education, that is DME, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and approved by Bar Council of India, would like to warmly welcome all the participants, guests, students, and faculty members to this special webinar series titled Media Master. Let me tell you, this is the third episode of Media Master web series. In the previous episodes of Media Master last month, we have discussed extensively on opportunities in media and print media. And let me also remind you that we shall be coming up with more webinars like this. We shall be coming up with a webinar on broadcast media with special focus on television. That would be held on Wednesday, that is 22nd of July 2020, between 3 to 4 through Zoom platform. That would be moderated by Ms. Yashaswika Yadav, who's an assistant professor at DME Media School. Of course, the expert would be Dr. Ambrish Saxena. We will also be having another webinar that would be focusing on language media, because that is the need of the hour. That would be held on Sunday, that is July 26, 2020, between 3 to 4 through Zoom only. And that would be moderated by Professor Dr. Susmita Bala, who's the head of DME Media School. And the third webinar, which we'll be having, that would be on digital and social media. That would be held on Wednesday, that is 29th of July, between the same time, that is 3 to 4, through the same platform, that is Zoom. And it would be moderated by Mr. Ritik Ghosh, who's an assistant professor at DME Media School. But in today's episode, we are going to discuss the most popular and often called a common man's medium, that is radio. Today, we are going to discuss about the opportunities, skill set, and future of radio industry, with special focus on our budding journalists, that is students, and the participants who have specially joined us with us in this webinar. And to discuss on the subject, we have a very distinguished expert amongst us, Dr. Ambrish Saxena, who's the Dean of DME Media School and Director, DME Studios and Production. Dr. Saxena has got at least 2 decades of experience in the media industry, wherein he has worked extensively in print media. He has been a moderator for a radio show. He has been expert in many television programs and has contributed for online media as well. Dr. Saxena has been a moderator of a very popular live show, which is broadcast daily on All India Radio's FM Gold channel, that is 100.1 megahertz at 6:30 p.m., called Market Mantra, which is a discussion-based show on business and economic affairs. So I welcome you, sir, to this webinar, and would request you to kindly share your views regarding today's webinar on radio. Thank you, Mohit. So, as Mohit has already pointed out, that I am going to talk about something which is the common man's medium. When we talk about media, then so many media is there, right from print, radio, television, films, and the digital media. But then whichever medium we talk about, ultimately it is only the difference from one platform to another. But then we have to have the contents which are to be taken to the people by making use of that medium. But then particularly talking about radio, radio is a completely different medium as compared to all other medium. Why? Because radio is the only medium which provides communication one-to-one. What does it mean? And normally when we are involved in communication, there are always 2 parties. On one side there is a communicator, on the other side there are communicators or the receivers who are receiving the message, or who are reading the content, or who are listening or watching the content. In the case of mass media, whether print or television or films. In the case of the mass media, the communicator is always one or very few in numbers, and the receivers are many. The receivers might be in hundreds or thousands, and then these receivers are scattered all over if we are talking in the case of India, all over the country, or in the case of the digital media, the viewers are all over the world. So I mean, the number can never be ascertained as to how many people are consuming any media or watching any media. And then their location cannot be restricted to a particular geographical limit.
So that's the merit or the demerit both of a mass media, because the greatest demerit of this kind of communication is that there is hardly any exchange happening between the communicator and the communicatee. Since the receivers are large in number, the communicator can never address to each and every participant or every viewer or listener. But in radio, that is very much possible. Why? The first thing is about radio, that both the communicator and the receiver here means the listeners who are listening to a radio program, they are equipped with the same technology. What is that? That's the audio medium. Uh, if the communicator is talking in a radio program, then if there are communication line established with the receivers, like if we talk about any phone-in program or interactive program example, then those who are listening to the program, they can also ask the questions again orally, I mean through spoken language. So both the communicator and the receiver, they are at the same platform. So that is something which establishes a comfort level, which is not there in print. If you are reading a newspaper as a reader, you can never instantly say something to the person, to the reporter, to the editor who would have edited or placed a story on a page of newspaper. The same thing is with television. The kind of problem that I refer to in the case of print media, in the case of television also, if you're watching a television program, there is no way that you can instantly communicate to the news reader or the anchor who is presenting a program on a television news channel. But that is always possible in the case of radio. That is how radio is called a commons man medium. Why common man's medium? Because it is easy to access, easy to reach, both ways, from the point of view of the communicator and from the point of view of the listeners. And it is affordable from both ends. If I'm communicating as a radio broadcaster, then not much expenses are involved if we compare it to print media or we compare it to television. Same is with the receiver. If you are a receiver of a newspaper, you need to have a newspaper copy to read. Similarly, if you are a viewer of a television channel, you need to have a television set and the connection, the DTH connection and all. Only then you can watch a program. But in the case of radio, you do not need any such apparatus for listening to a radio program. And nowadays, the radio is available on the this mobile handset, wherein you are not spending anything. You are interested in listening to a radio channel, you simply log in, you simply switch on the concerned radio channel in your mobile handset. So it's easy, and then it's inexpensive. You're not spending anything. If you watch television, you are spending a certain amount in a month. If you are reading newspapers, you are spending a certain amount, you are buying the copy of the newspaper. But then while listening to radio, you are not spending anything. So that is the beauty of radio. That is how radio has always been very popular. Earlier also, when mobile was not there, that time also radio was very easy. Radio could be an apparatus, a machine which can be put up at a location in your house. But then, as far as the transistor is concerned, earlier what was happening, even today that is happening in rural areas, you can find a lot of people are moving with a transistor set. Now that transistor set, wherever they are going, they can carry that, and that is very light in weight, and that is very inexpensive. Like transistors are available even for 100 rupees in the market. And even if you are buying a costly transistor set, that will be in any case within 1,000, not more than that. If you compare it with television channel, a television set cannot be available less than 6 or 7,000. But if you're buying a smart TV, then that might be costing 40,000, 50,000 to 60,000. But that's not the case in radio.
That is how radio is called a common man's medium. It is inexpensive, it's affordable, it's easy to handle, and it is easy to access and available to everybody. Even if you do not have any money in your pocket, you can listen to a radio program. Now, that's the beauty of radio. Now, moving on, uh, since this is the merit of radio, for any broadcaster, for any mass communicator, this is the best thing to practice. So, if in media, if you want to pursue a career in radio, so that is very easy as compared to print, as compared to television, or even as compared to digital, because the only thing that you need, you must have a flair for speaking, and you must have a hold on writing, and then nothing is required. Like if you want to produce a radio program on your mobile handset, you need not to do anything except that you just put on your recorder in your mobile, you start speaking, it will be recorded. So instantly, within 5-10 minutes, you are ready with a program. That's not possible in television, and that's even not possible in radio. You will be writing something that you will be posting at some platform. Print, obviously not. Then you have to go to digital media, and then the possible platforms which will be available. Then you will be putting whatever you would have spoken or whatever you would have written on some digital platform, and then you need to have the internet connection and all. But in the case of radio, within 5 minutes, 10 minutes, you simply get your, I mean, record your piece on your mobile handset, and then you can send it to hundreds of people who can listen to your program, who can be benefited by your program, and who can give you a lot of appreciation for the kind of program, for the quality of program that would have that you would have produced with the minimum requirement, right? Sir, So, yeah. I'm sorry I'm interrupting, Uh, sir. I just um, wanted to ask you a question for the benefit of all the listeners who have just joined in and who will be joining and who are listening to us. You have just mhm, mentioned that radio is a common man's medium and we mhm, require a flair for writing and a good oration skills. mhm, So, if we compare radio with television, the kind of mhm, writing which is required, or maybe with mhm, print media, or maybe with mhm. digital media, can you please share your views? What are the skills required? How different it is? Yeah. It's a very good question, Mohit. Thank you for this. See, when you are writing for radio, it is written, I mean, any piece, any script is written in the spoken style, because ultimately radio is a spoken medium. So there are two ways which are available to you. Either you speak extempore, which is a practice mostly adopted by private FM channels. They might be having certain pointers or certain things written, but then it's mostly extempore. It's spontaneous. This is a practice which is adopted by private FM channels these days. But when you talk about All India Radio, it is always scripted. So whenever you are, I mean, there are benefits obviously with a script. The greatest benefit with a script, if you have written a script in your hand, you will remain on track. Whatever duration of program you are doing for 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, you will remain on the track which you would have decided for your program. You will not deviate, and then I mean, you will not search for words while speaking because you have already written that. So language wise, your language will be of a better quality. But then uh, there is a demerit involved. If you are doing this and if you are banking too much on the script, and so the listener will feel like as if you are reading from a written text. So that's not good for a broadcaster. So two things are here for you as a broadcaster, as a radio broadcaster. If you are writing a script, uh, you are sitting on the table writing something, or you are writing something on your laptop or the desktop, but then uh, it's a written script which is to be used for speaking. So it's a written script in the spoken language.
So that's a challenge in writing, that you are writing, but this is meant for speaking, because always there is a difference between the written language and the spoken language. Spoken language has to be more conversational, बातचीत के अंदाज में होना चाहिए. सो इसलिए आपको लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है. सर एक सवाल और मन में आता है कि जब हम इसी मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूं कि जैसे आज की डेट में स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है, हालांकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में हम सब लोग हैं और अभी स्पोर्ट्स के कुछ टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं. तो ये देखा जाता है कि जो रेडियो की कमेंट्री है और जो टीवी की कमेंट्री है उसमें हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं अगर हमें रेडियो में जाना है या हमें टेलीविजन में जाना है. और दूसरा ये है कि हम अपने शब्दों का चयन जो है, जो अपनी वोकैबुलरी है, जो अपने शब्दों की चयन है, उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बन पाए. ठीक है, गुड. पहले मैं स्पोर्ट्स वाली बात जो मोहित ने उठाई उसकी बात करता हूँ. स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली ज्यादातर लोग विजुअल्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हैं और क्रिकेट की कमेंट्री देख रहे हैं, तो जब आप देखते हैं तो एक्शन तो देखने में ही अच्छा लगेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेडियो? बोथ वेज, एज अ कमेंटेटर एंड as a listener. As a commentator, what is the benefit? That you need not to be right in front of the action, and even then you can do the broadcasting. That is one good thing. You need not to. Television में क्या है कि अगर television का कोई commentator है, then huge infrastructure is required on the stadium. कैमरेज रिक्वायर्ड है, उनका प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, मैन पावर रिक्वायर्ड है. बट इफ यू आर ए ब्रॉडकास्टर विद अ रेडियो, नथिंग इज रिक्वायर्ड. तो विद वेरी लेस एक्सपेंसिव यू कैन डू दैट. एंड एज ए रिसीवर, एज ए लिसनर, अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो आपके पास एक टेलीविजन चैनल होना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए, और आपके पास खाली समय होना चाहिए जहां आप बैठ के 2 घंटे 3 घंटे, अगर ओडीआई भी देख रहे हैं तो आपके पास वो 3 घंटे का टाइम आपके पास है जब आप बैठ के देख रहे हैं मैच. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मोबाइल है, ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप कुछ भी और दूसरा काम कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप कमेंट्री का आनंद लेना चाहते हैं, देन रेडियो इज द ओनली वे आउट. तो रेडियो के अपने बेनिफिट्स हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो पहले भी मैंने बात की थी, जो उसकी मोबिलिटी का एस्पेक्ट है, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी का एस्पेक्ट है, और जो अफोर्डेबिलिटी का एस्पेक्ट है, वो कमेंट्री में भी उतना ही लागू होता है. तो इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जहां तक शब्दों की बात है, अगर एज ब्रॉडकास्टर हम बात करें तो, या जो हम भाषा की बात करें, तो क्या होता है कि जब हम रेडियो के लिए बोलते हैं, वो अगर मैं कंपेयर करूं टेलीविजन से, क्योंकि दोनों ही माध्यम ऐसे हैं, रेडियो ऑडियो है और टेलीविजन ऑडियो विजुअल. तो क्या होता है कि जब टेलीविजन में आप किसी प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बार, ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि विजुअल्स आर देयर फॉर योर सपोर्ट. अगर आप न्यूज रीडर की बात करें, न्यूज रीडर बोल रहा है न्यूज, एंड देन उसके आधे स्क्रीन में विजुअल्स चल रहे हैं, उसके बाद न्यूज रीडर गायब हो जाता है और पूरे जो स्क्रीन पे है उसमें आपको विजुअल्स दिखाई देते हैं. तो बहुत समय ऐसा होता है जो सिर्फ विजुअल्स चलते हैं, न्यूज रीडर बोलता ही नहीं है. तो क्या हुआ, न्यूज रीडर को ब्रेक मिल गया, रेस्पाइट मिल गया, लगातार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. दूसरा, जो विजुअल्स चल रहे हैं उनको अगर सपोर्ट करने के लिए, कुछ समझाने के लिए जरूरत होती है, तो वॉइस ओवर का इस्तेमाल हो जाता है, वहां भी न्यूज रीडर की जरूरत नहीं है. तो जो प्रेजेंटर है या न्यूज रीडर है, न्यूज एंकर है, उसके लिए उतना टैक्सिंग नहीं होता. विजुअल्स उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं. लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है, रेडियो में कोई विजुअल्स नहीं है. तो व्हेनेवर ए ब्रॉडकास्टर और न्यूज रीडर इज प्रेजेंटिंग द बुलेटिन और प्रेजेंटिंग एनी अदर प्रोग्राम, he has to talk to his or her audience in a language which is understanding. क्योंकि आपके शब्द सुनकर ही, जो रेडियो को सुन रहा है उस वक्त आदमी, आपके शब्दों को सुनकर ही वो विजुअलाइज करता है कि आप क्या कह रहे हैं.
तो आपके पास जो भाषा है, जो आपके पास शब्द हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि वो इतने इफेक्टिव हो कि जो सुनने वाला है वो उनको विजुअलाइज करके समझ पाए। तो आपके शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए जो जो विजुअल एलिमेंट क्रिएट कर सकें सिंपली बाय स्पीकिंग। एंड देन दोज वर्ड्स हैव टू बी सच विच आर इजी। आप अगर बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे, बहुत क्लिष्ट शब्दों को यूज करेंगे जिनकी मीनिंग जो सामान्यतः लोग नहीं समझते, तो बहुत मुश्किल होगा। तो अंग्रेजी टेलीविजन में फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी सपोर्ट के लिए टीवी है। आपका शब्द नहीं भी समझ में आया देखने वाले को, तो विजुअल देख के समझ लेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो चूंकि विजुअल्स नहीं है, आप सिर्फ शब्दों से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके शब्द बहुत आसान होने चाहिए। आपका जो व्याकरण है वो बहुत भारी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना है। और जो आपका जो शब्द, जो जो वाक्य विन्यास है, जो शब्दों का, जो सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको यूज नहीं करने हैं। बहुत छोटे और इजी शब्द इस्तेमाल करने हैं। तो क्योंकि आप बहुत लंबा बोलेंगे तो फिर वो किसी की समझ में नहीं आएगा। छोटे छोटे शब्द और सरल भाषा, सरल शब्दों के साथ ही, छोटे वाक्यों के साथ ही आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज तो खैर नो डाउट, बट देन आप एक बार इसको मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली कम्युनिकेटर बन सकते हैं। और आप जो हम कहते हैं ना, जो लास्ट मैन है भीड़ में, समाज में, आप उस तक बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते सर एक सवाल और है कि अभी आपने कहा कि अगर आपको रेडियो में अपना करियर बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना लिखकर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं फोन पर। तो एक तो ये बात हुई, बट इसके अलावा अगर कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन करके कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, रेडियो में अपना करियर बनाना चाहता है, तो और क्या संभावनाएं और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर जाकर वो अपना जो स्किल है उसको पॉलिश करके बाद में बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर भी वो एंटर कर सकता है? जी, ठीक है मोहित, अच्छा है ये। आई मीन, by answering this question I can tell everything in fact to all those people who are interested in making a career in radio. लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रेडियो है, अगर हम टेक्नोलॉजी से शुरू करें तो रेडियो अकेला ऐसा माध्यम है। अगेन अगर हम टीवी से कंपेयर करें, टीवी से कंपैरिजन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग का जो टेलीविजन का एक्सपोजर है वो ज्यादा है, तो उस लाइट में थोड़ा समझने में आसानी होगी चीजों को। अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो इंडिया में जो रेडियो है ये टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है। दो तरह से ब्रॉडकास्टिंग होती है पूरी दुनिया में, हमारे देश में, चाहे हम रेडियो की बात करें चाहे हम टेलीविजन की बात करें। एक है टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग और दूसरी है आपकी सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया में सैटेलाइट रेडियो में सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग नहीं। तो उसका फायदा क्या है? जो पहले मैं कह रहा था उसको ही मैं और सपोर्ट करता हूँ इस उदाहरण से कि चूंकि टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग इज अ ब्रॉडकास्टिंग व्हिच हैपन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर्स की एक रेंज होती है, एक कैपेसिटी होती है, और वो एक सर्टेन दूरी पे ट्रांसमीटर्स को इंस्टॉल किया जाता है। आप जब कुछ बोल रहे हैं रेडियो पे, किसी भी रेडियो, चाहे प्राइवेट एफएम की बात करें चाहे हम एआईआर की बात करें, तो वो क्या होता है कि वो ट्रांसमीटर्स आपकी जो 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 बोल रहे हैं उसको पिक करता है और वो फिर ट्रांसमीटर्स के थ्रू रेडियो सेट तक पहुंचाता है, जिस तरह से लोग सुन पाते हैं। तो चूंकि रेडियो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग में हमारे देश में है, टेलीविजन नहीं, टेलीविजन मोस्टली सैटेलाइट है। जहां भी सैटेलाइट होगा एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व, कॉस्ट आ जाएगी। तो रेडियो में चूंकि टेरेस्ट्रियल है तो बहुत आसानी से आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। सैटेलाइट है इन द लिमिटेड सेंस, बट अभी मैं उतनी इंट्रिकेसी में नहीं जाना चाहता। एलिमेंट्री लेवल पे जो लोग पहली बार अगर रेडियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यही मान के चलते हैं कि टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है तो उसके बाद इसके अंदर दो तरह के ब्रॉडकास्टिंग है, उसको हम ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग है जो ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग है, और दूसरी ब्रॉडकास्टिंग है जो प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग है। जब हम ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो ये लगभग 100 साल पुरानी ब्रॉडकास्टिंग है अब हमारे देश में। 1921 में रेडियो की शुरुआत इंडिया में हो गई थी, और रेडियो बहुत जल्दी आ गया था।
इंडिया में लगभग जिस समय में पूरी दुनिया में आया लगभग उसी समय इंडिया में भी आ गया, जबकि टेलीविजन को आने में थोड़ा सा टाइम लगा। और औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से इंडिया में जो रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग है वो 1927 में पूरी तरह से शुरू हो गई। सो इट्स क्लोज टू 100 इयर्स दैट वे, अगर हम 1927 की बात करें तो ये तो हो गया ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो वाज अर्लियर इन द सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंडर में था। इंडिपेंडेंस से पहले ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। 47 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर गया, और जब 47 में इंडिया में सिर्फ 6 ही रेडियो स्टेशन थे। तो यू कैन इमेजिन कि उस समय से अब तक कितना लंबा रास्ता रेडियो ने इस देश में तय किया है। 47 में जो 6 रेडियो स्टेशन थे वो अब सैकड़ों रेडियो स्टेशन में, आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द स्टैटिस्टिक्स, बट इट्स इन हंड्रेड्स, राइट। और जब हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं तो अगेन ऑल इंडिया रेडियो का मैं सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस में बता देता हूँ। वो जो सेटअप है वो हर एक स्टेट कैपिटल में एक रेडियो स्टेशन है विच इज कॉल्ड द कैपिटल स्टेशन। एंड देन जो ऐसे राज्य हैं, जैसे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जो बड़े राज्य हैं, वहां पर कैपिटल के अलावा भी 3 या 4 जगह और रेडियो स्टेशन है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लखनऊ के अलावा गोरखपुर में, कानपुर में, मथुरा में, आगरा में, बनारस में, ये सारी जगह रेडियो स्टेशन है। ये ऑल इंडिया रेडियो का सेटअप है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो में विविध भारती का एक अलग से चैनल है विच इज फिल्म न्यूज, light music based channel, and then there are so many other channels like Red FM, then this AIR FM Gold है, and then AIR FM Rainbow। ये सारे ऑल इंडिया रेडियो के चैनल्स हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो is a broadcasting organizations which we can say is a multi channel organization, जहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए, जो एक जिसको हम AIR की भाषा में कहते हैं, जो एक कैपिटल स्टेशन या जो बेस चैनल है, और फिर हमारा विविध भारती है, इंद्रप्रस्था है, दिल्ली में इंद्रप्रस्था है, राजधानी है, एंड देन विविध भारती चैनल है जो पूरे देश में बहुत सारी जगह है, और देन गोल्ड एंड रेनबो है। एज कंपेयर टू दिस, जो प्राइवेट एफएम चैनल्स है वो हर शहर में एक कंपनी का एक है, लेकिन जो बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं, बॉम्बे जैसे शहर हैं, या जो और मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वेदर वी टेक द एग्जांपल ऑफ बैंगलोर और हैदराबाद, वहां पर 5-6 चैनल्स हैं। दिल्ली में करीब 14 चैनल्स हैं। तो ये सारे चैनल्स प्राइवेट कंपनीज के चैनल है हु ऑपरेट आफ्टर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन चैनल्स को चलाते हैं एज पर द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड अदर थिंग्स। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेलिंग of the regulation and the licensing part, but then I can tell you this, जो एक प्राइवेट कंपनी है वो किसी भी बड़े शहर में, बड़े शहर जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली जिस तरह का शहर है, यहाँ पे एक से ज्यादा चैनल भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ जितने भी चैनल हैं, एक कंपनी है जो 3 चैनल चलाती है दिल्ली के लिए। तो बट देन एक कंपनी एक जो होगा, एक सेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होगी एक फ्रीक्वेंसी पे, बट ये AIR में नहीं है। अब आप करियर कहाँ बना सकते हैं? अगर आप ऑल इंडिया रेडियो में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा कर लीजिए, या इसमें दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, या आपने वो उस तरह की पढ़ाई नहीं की है, आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है, देन यू कैन डू ए 1 year डिप्लोमा after your graduation in journalism and mass communication, and then you are eligible to apply for a job in All India Radio। तो इस तरीके से आपको जो जॉब ऑल इंडिया रेडियो में मिलेगा, ये बेसिकली आपको जो मिलेगा, दिस इज कॉल्ड ग्रुप बी सर्विसेज, एंड द रिक्रूटमेंट इज डन टाइम टू टाइम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक चैनल हो गया। अगर आप पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग में करियर बनाना चाहते हैं, AIR में बहुत ही ब्रीफ में अगर मैं बताऊं, 2 सेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, एक न्यूज है, एक नॉन न्यूज है। नॉन न्यूज को वी टर्म एज प्रोग्रामिंग। तो AIR में 2 तरह की ब्रॉडकास्टिंग है, एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग है और एक आपकी प्रोग्रामिंग।
तो सपोज अगर आप प्रोग्रामिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकते हैं। वहां पर टाइम टू टाइम पोस्ट एडवर्टाइज होती रहती हैं, और जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे और जिस पे आपका सिलेक्शन होगा वो कहलाती है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स। वो भी क्लास 2 की सर्विस है। तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस, वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्वियसली वो क्वालिफाई करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की डिग्री की है तो वो पढ़ाई आपके काम आएगी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके। तो एक तरीका वो हुआ AIR में नौकरी पाने का। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ब्रॉडकास्टिंग में जहां पर आप हमेशा सामने नहीं है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, चाहे वो मैंने आपको सबसे पहले ग्रुप बी ऑफिसर्स बताया एनबी मिनिस्ट्री में, वो न्यूज साइड में अपॉर्चुनिटी है, और जो दूसरा मैंने यूपीएससी के थ्रू बताया वो भी क्लास 2 में है, जो प्रोग्रामिंग साइड में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप सामने, आइदर आप प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं, सामने से मतलब आइदर यू आर मेकिंग द होल प्लानिंग फॉर द प्रोग्राम, और यू आर प्रेजेंटिंग योर program either as a presenter or as a news reader. But then there are so many such jobs in a radio broadcasting organization जहां पर आप फ्रंट में नहीं है, आप पीछे हैं। आप रेडियो का जो ऑपरेशन है उसका हिस्सा है, तो उस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसको हम कहते हैं जो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो वो जो, अगर आप ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। वहां भी अगेन, अगर आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू देंगे उसको क्लियर करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये 2-3 मैंने आपको डिफरेंट तरीके के एवेन्यूज बताए। इसके अलावा क्या है कि एक एवेन्यू ये हो सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो में, अगेन मैं एक बात और कह के फिर ऑल इंडिया रेडियो की बात को पूरा करूंगा। तो आप ऑल इंडिया रेडियो में और क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा निगेटिव साइड है ऑल इंडिया रेडियो के सेटअप में, क्योंकि ये मोर और लेस गवर्नमेंट सेटअप में, हालांकि पूरी तरह गवर्नमेंट सेटअप में नहीं है। इसका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड प्रसार भारती। तो ये कहने को तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है दोनों इस प्रसार भारती के अंदर आते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन है 97 के बाद से, क्योंकि एक अलग से प्रसार भारती एक्ट बना है, लेकिन प्रैक्टिकली सरकार ही बैक डोर से इसको कंट्रोल करती है। तो ये पूरी तरह से उस तरह से ऑटोनॉमस नहीं है द वे इट लुक्स लाइक। सो इस जो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसकी वजह से व्हाट हैज हैपेंड दैट द रिक्रूटमेंट इन ऑल इंडिया रेडियो इज नॉट वेरी रेगुलर। नाउ what the All India Radio has done to meet this problem, they employ people on contract basis to take up different jobs. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब है कि आपको अगर रेगुलर वैकेंसी में, अगर ऑल इंडिया रेडियो ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली बट अल्टीमेटली दे नीड द न्यूज रीडर्स, तो वो एडवर्टाइज करते हैं और एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं। This happens on the news side also. This happens on the programming side also. तो यंग लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि even if they have not been able to compete the competition which is not yet advertised, but then they are too eager to join radio broadcasting, they can straight go to All India Radio office whichever city they are. And in Delhi, obviously, there are much more opportunities because Delhi is the headquarter of All India Radio, and you can get all those opportunities. Like I myself, as Mohit pointed out initially, I myself have been anchoring a program for the last 20 years in All India Radio. This is a program called Market Mantra, which is on air from 6:30 to 7 on AIR FM Gold. Now, I am not an employee of All India Radio, but still, I am anchoring this program for 20 years
Before that, I was working as a news reader in All India Radio, though again, I was not in the full employment of All India Radio, but that was an opportunity which was available to me. I availed that opportunity and I have been doing this. And I am not the only person doing this. There are hundreds of people who are availing such opportunities. So this is some such opportunity which is available to everybody. Even if you don't want to make a full-time career in radio, this is an opportunity which gives you space, which gives you exposure, and which also gives you money. Because one very, very important thing about All India Radio is anything that All India Radio offers to you, you are always paid. There is nothing for free. आप कुछ भी काम ऑल इंडिया रेडियो में कर रहे हैं आपको उसका पैसा मिलेगा. Even Mohit Watts has been anchoring the this editing the sports program on All India Radio for very long. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है यंगस्टर्स के पास, ये किसी माध्यम में, प्रिंट में नहीं है, टीवी में नहीं है, कहीं नहीं है, जहां आपको कभी भी काम करने का मौका है और जो काम आप करेंगे उसका आपको पेमेंट. सर एक सवाल और है, से इसको बताया, एक सवाल और है कि एक शब्द है कम्युनिटी रेडियो, जो कई बार हम लोग अपने सिलेबस में भी डिस्कस करते हैं और काफी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कम्युनिटी रेडियो रन भी करते हैं. तो आपके हिसाब से कम्युनिटी रेडियो का रेलेवेंस आज की स्थिति में, आज की सिचुएशन में क्या है, और आने वाले टाइम में जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो आपदाएं आ रही हैं लगातार, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो कोविड-19 जैसा पेंडेमिक हो, तो आपको क्या लगता है रेडियो किस तरह का रोल प्ले कर सकता है ऐसी आपदाओं में और ऐसी स्थिति में, और कम्युनिटी रेडियो स्पेसिफिकली? कम्युनिटी रेडियो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, नो डाउट अबाउट दिस. लेकिन मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये भी नहीं मैं चाहता कि एक 40-50 मिनट्स में मैं पूरे साल भर का रेडियो पढ़ा दूं, क्योंकि अभी जो लोग हैं इस सेशन में, I don't know what kind of exposure they have about radio. तो अगर मैं too much information होगी, information overload हो जाएगा, तो हो सकता है उनको चीजें समझ में ना आए. That is how I have been trying to address such kind of things which wherein the young people can directly relate to. The kind of examples which I was giving just now, the kind of opportunities which are readily available. But in 2-3 lines, I will sum up community radio. Community radio is a completely different concept, wherein the educational institutions and NGOs are allowed to set up their own radio stations. The whole idea behind this, conceptually, it's a radio by the people, for the people, of the people. मतलब जैसे अगर कोई NGO है या कोई education institution है, उसमें जो लोग रेडियो चला रहे हैं, वही प्रोग्राम बना रहे हैं, वही प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंड वही उसकी टारगेट ऑडियंस है. या एट द मोस्ट जो कम्युनिटी है सराउंडिंग्स में, द होल ब्रॉडकास्टिंग इज टारगेटेड टू दैट कम्युनिटी, राइट. सो एक तो हम कहें ये नैरो कास्टिंग का एग्जाम्पल है. ब्रॉडकास्टिंग के रिवर्स में नैरो कास्टिंग है. ब्रॉडकास्टिंग इज सम सच थिंग वेयर इन यू आर taking your contents on a radio platform to larger audience. जो मैंने बिल्कुल शुरू में एग्जांपल दिया था, अगर मैं AIR FM गोल्ड में कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो पौंडीचेरी में बैठा हुआ आदमी भी देख रहा है और अरुणाचल में बैठा हुआ आदमी भी सुन रहा है. बट कम्युनिटी रेडियो में वो होगा 10-12 किलोमीटर के रेडियस में ही प्रोग्राम होगा. तो ऑडियंस जो है वो बहुत ही टारगेटेड होती है, बहुत ही फोकस्ड होती है. ये एक कम्युनिटी रेडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड नैरो कास्टिंग. मतलब एक बहुत ही छोटे दायरे में ब्रॉडकास्टिंग की जाए. ब्रॉडकास्टिंग इज जो बहुत बड़े दायरे में हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और नैरो कास्टिंग जो बहुत छोटे दायरे में कर रहे हैं. तो कम्युनिटी रेडियो का लिमिटेड सिग्निफिकेंस है, उसका डेवलपमेंट के लिहाज से सिग्निफिकेंस है, एक्सटेंशन के लिहाज से सिग्निफिकेंस है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिहाज से सिग्निफिकेंस है. लेकिन किसी भी यंग आदमी के लिए जो रेडियो में करियर बनाना चाहता है, उसके लिए limited significance. I will not say that there is no significance, but there is a limited significance. इसलिए मैं उसमें नहीं, बल्कि मोहित में ज्यादा आप 5 मिनट और लेके 4-5 मिनट में मैं FM रेडियो के बारे में ज्यादा बताना चाहूंगा, जहां पर यंग लोग सीधे जा सकते हैं. क्योंकि मैंने ऑल इंडिया रेडियो के बारे में काफी डिटेल में आपको बताया. सो इफ यू आर ए यंग पर्सन एंड यू वांट टू बिकम एन RJ, द वेरी कॉमन टर्म व्हिच इज यूज्ड, a radio jockey, though in common parlance this radio jockey is nothing but a radio presenter.
तो अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, यू वांट टू टेक अप ए जॉब इन ए प्राइवेट एफएम चैनल, तो सबसे आई विल प्रेफर कि कोई यंग लोग उसी को एस्पायर करें, क्योंकि वहां देखिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ओपनिंग्स भी हैं, आपको आपका एक्सपोजर भी है, जो 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 आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि लोग आपको जाने, लोग आपको सुने, वो भी पूरा होगा, और आपको पैसा भी मिलेगा, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली ए पेड जॉब। बट देन उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो और सब मीडियम में भी काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा आपका नॉलेज लेवल एक सर्टेन लेवल का होना चाहिए, बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। और देन यू शुड हैव ए कमांड ओवर स्पीकिंग, क्योंकि क्या है कि आपको बोलना है। अगर आपका बोलने में हेसिटेशन है तो प्रॉब्लम है, तो बोलने में आपका एक फ्री फ्लो होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जो बहुत सारे मीडियम है इस देश में जहाँ पर इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है देन इट्स अ हैंडीकैप, बट एज फार एज एफएम रेडियो इज कंसर्न, the broadcasting is done in the language of the people of that particular area, मीनिंग thereby कि अगर आप बेंगलोर में रेड एफएम में काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे कन्नड़ में प्रोग्राम प्रेजेंट करना। अगर आप मद्रास में, तमिलनाडु में रेडियो सिटी में काम कर रहे हैं तो वो प्राइवेट एफएम चैनल है वहां का, लेकिन वहां पे आपको तमिल में प्रोग्राम प्रेजेंट करना है। तो लैंग्वेज के लिहाज से अगर आप देखें तो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन में है वैसी कहीं नहीं है। आप जिस भाषा को बोलने वाले हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, अपनी जो भी आपकी मदर टंग है, उस राज्य की भाषा है, उसमें अपने को पारंगत कर लीजिए, उसमें अपने को प्रोफिशिएंट कर लीजिए, एंड देन यू कैन इजीली गेट अ जॉब इन दोज लैंग्वेजेस। तो जो लैंग्वेजेस की बात है वो प्राइवेट एफएम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद ऑब्वियसली जो जॉब्स हैं वो हिंदी में है, क्योंकि हिंदी भाषी प्रांत ज्यादा हैं। अगर आप दिल्ली में किसी प्राइवेट एफएम में काम कर रहे हैं, या राजस्थान में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव हिंदी। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की इस देश में, जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इंग्लिश कैन ऑलवेज बी देयर टू सप्लीमेंट, टू ऐड, because if you have this efficiency in both the languages, that nothing like that, that will be helpful. But then you should have proficiency in the language which is your mother tongue, which is spoken in the state where you are living in, because most of the jobs will be available only in that language. And then प्राइवेट एफएम रेडियो में भी दो तरह के जॉब्स हैं, जो मैंने एआईआर के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था। एक तो प्रेजेंटर का आरजे वाला जॉब है, जहां पर आप फ्रंट में हैं, सामने। एक प्रोग्राम है जहां आप सामने नहीं है, आप प्रोग्राम प्रेजेंट नहीं करते, आप आरजे नहीं है, बट पीछे हैं, बट आप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, एंड दैट्स अ जॉब व्हिच इज कॉल्ड दैट यू आर हैंडलिंग द प्रोग्रामिंग। तो आप जो प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि कौन सा प्रोग्राम जाना चाहिए, किस समय जाना चाहिए, नए प्रोग्राम आइडियाज को लेके आप आ सकते हैं, उस प्रोग्राम को स्पेल आउट कर सकते हैं, किस समय जाएगा, क्या टारगेट ऑडियंस होगी, तो वो सारी डिटेलिंग आप कर सकते हैं। एंड देन सम आरजे इज इनकॉर्पोरेटेड टू प्रेजेंट दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम। और जब आप प्रोग्रामिंग को कंसीव कर रहे हैं, कुछ आइडियाज पे काम कर रहे हैं, वहां ऑब्वियसली you have to keep the preference and the aspirations of your audience in mind. You also have to look into the commercial interest of your channel in mind, because ultimately radio, television, print, whatever medium we talk about, we can never neglect the commercial aspect, because we have to keep the show running, we have to sustain, we have to run the channel. तो वो कॉमर्शियल, तो वो एस्पेक्ट भी आप ध्यान रख के, बहुत सारे इफ आई कैन टेल यू, जो प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं वो इस तरह के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ प्रोग्राम्स के आइडियाज पे काम करते हैं। बट देन ऐसे लोगों का दिमाग बहुत फर्टाइल होता है, वो मीडियम को समझते हैं, वो एडवर्टाइजिंग को समझते हैं, वो लोगों की इंटरेस्ट को समझते हैं, और उनके पास वो स्किल होती है, वो ट्रेट होता है कि वो कुछ नई चीजें लेके आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल हैं, कहीं पे वो मुर्गा बनाने का प्रोग्राम होता है, कहीं पे कोई शायरी होती है, मतलब तरह तरह के आइडियाज लेके आते हैं जो कैची हो,
जो लोगों को पकड़े, जो लिसनर को पकड़ पाए। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जहां पर इफ यू आर वर्सेटाइल, इफ यू आर क्रिएटिव, तो बहुत सारे ऐसे जॉब आपको मिलेंगे रेडियो में जो नॉर्मली आपने कभी सोचे नहीं होंगे, कोई जानता भी नहीं होगा इस तरह का काम रेडियो में होता है। बट देन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्रिएटिव इंस्टिंक्ट होना चाहिए, बहुत ही सोचने समझने वाला फर्टाइल दिमाग होना चाहिए, नए तरह के आइडियाज आप सोच पाते हो, उसको एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए रेडियो बहुत ही पावरफुल मीडियम और बहुत ही अच्छा मीडियम साबित हो सकता है। Oh, thank you so much, sir. I would also request now the participants to kindly put in their questions in the chat box, and the feedback form is also available. You can also fill that. And if you have any questions, you are most welcome to put your questions in the chat box. सर एक सवाल और है मेरा, इससे पहले कि हमारे पास चैट बॉक्स में सवाल आए। पॉडकास्टिंग को लेके एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, तो पॉडकास्टिंग के बारे में क्या आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको थोड़ा सा बता पाएंगे कि पॉडकास्टिंग क्या है और किस तरह से वहां पर काम होता है और कैसे वो चेंज हो रहा है? जो ब्रॉडकास्टिंग की हम रेडियो में स्पेसिफिकली बात करें तो पॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट नया कैसे है? पॉडकास्टिंग के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि देखिए, जैसे ब्रॉडकास्टिंग या नैरोकास्टिंग की हम बात कर रहे थे, पॉडकास्टिंग इज समथिंग वेयर इन विच इज अ मिक्स ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग विच इज अवेलेबल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आप अपने प्रोग्राम्स को बना के, जो विच आर द रेडियो प्रोग्राम्स, चाहे आप कोई रेडियो जिंगल बना लें, कोई टॉक अपने रिकॉर्ड कर लें, कोई ड्रामा रिकॉर्ड कर लें, एंड देन यू क्रिएट योर ओन चैनल on the digital platform, and then you put all your programs on the digital platform, तो आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बट उसके लिए दो चीजें ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, आपको रेडियो की एज ए मीडियम समझ हो। भले ही आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल ब्रॉडकास्टिंग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर ब्रॉडकास्टिंग की समझ है, आपको रेडियो प्रोग्रामिंग की समझ है, तो ओनली देन यू कैन कंसीव योर प्रोग्राम, यू कैन क्रिएट योर प्रोग्राम, एंड देन ऑब्वियसली आपका को डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, कैसे कैसे अपनी ऑडियंस को रीच आउट करना है, वो आपके आपके पास समझ होनी चाहिए। इसीलिए अब जैसे आई मीन यू अर्लियर गेव द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी रेडियो। इनफैक्ट अब क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट प्रेफरिंग द कम्युनिटी रेडियो। इसीलिए कम्युनिटी रेडियो वाज नेवर that successful in India, which should have been. It should have been very successful 20-25 years ago, but it did not happen. But in nowadays, community radio is not very in thing, since this internet is there with us, and internet has changed everything. Whether we talk about print media, we talk about radio, we talk about television, and the same is with radio. तो रेडियो में जब इंटरनेट हमारे पास है, देन पॉडकास्टिंग इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हम किसी भी तरह के प्रोग्राम को क्रिएट करके, और जो रेडियो में जो हम कन्वेंशनल तरीके से समझते हैं, जो मैंने भी इनिशियली आप सबको बताया कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत एक डिफाइंड है, एक टारगेटेड है। बट पॉडकास्टिंग में वो भी नहीं है, हमारी जो ऑडियंस है वो इनफाइनाइट हो सकती है, हमारी रीच बहुत ज्यादा हो सकती है। तो वो पॉडकास्टिंग का जो सबसे बड़ा मेरिट है। बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। आप एक सिंगल पर्सन भी पॉडकास्टिंग में जा सकता है, आपको बहुत एक्सपेंसेस की, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी की जरूरत नहीं, आपको नौकरी ढूंढने की भी जरूरत नहीं। दैट्स द गुड थिंग अबाउट पॉडकास्ट। Thank you so much, sir. There is a question coming up from Mr. Yogesh Sharma. He is asking, briefly describe about programming system in AIR. I think I know we have already discussed, but he has asked this question. नहीं, मैं अच्छा चलो मैं 2-3 लाइन में बता देता हूँ, मुझे बताने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन बस वही समस्या घूम के आ जाती है कि मैं जितना बताऊंगा वो सारे लोग उतना ग्रेस्प कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, वो है। चलो 2-3 लाइन में बताता हूँ। AIR की जो प्रोग्रामिंग है उसकी जो सबसे खास बात है, जो इस देश में किसी भी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, इवन विदेश में भी, जो ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्ट को बहुत ही एक्सक्लूसिव बनाता है, वो है कि बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस है। हम टारगेट की बात तो बहुत करते हैं, टीजी की बात करते हैं, फोकस ग्रुप की बात करते हैं, बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन सही मायने में टारगेटेड ब्रॉडकास्टिंग अगर कहीं है तो ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामिंग।
इसका एग्जाम्पल ये है कि ऑल इंडिया रेडियो की जो प्रोग्रामिंग है वो कई सारी कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे कि वहां पर बच्चों के लिए अलग तरह के प्रोग्राम है, यूथ के लिए अलग तरह के प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए अलग तरह के प्रोग्राम है। तो ऑडियंस वाइज प्रोग्राम अलग अलग। तो इतना प्रिसाइजली प्रोग्राम्स को वर्कआउट किया गया है। 1 2 उसमें सब डिविजन्स हैं, सब कैटेगरीज हैं। लाइक जो बच्चों का प्रोग्राम है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक सेक्शन है जो टिनी टॉट्स के लिए, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है। एक प्रोग्राम है जो टीनेज से पहले का है, मतलब 12 ईयर तक के बच्चों के लिए है। फिर एक प्रोग्राम है जो जब टीन के लिए है, 13 से 19 तक के लिए है। फिर 20 आउटवर्ड्स यूथ के लिए अलग प्रोग्राम है जो 35 ईयर्स तक को टारगेट करता है। तो इस तरह की जो प्रेसाइज वर्किंग है प्रोग्रामिंग की, वो कहीं नहीं, मतलब अनथिंकेबल है, आज के जमाने में भी नहीं है कहीं। इसी तरह महिलाओं का प्रोग्राम है, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो बाकी जगह तो महिलाओं का प्रोग्राम है, लेकिन दिल्ली में ग्रामीण महिलाओं का अलग प्रोग्राम है और शहरी महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम है। एक उदाहरण बस और दूंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। म्यूजिक का एग्जाम्पल है। नॉर्मली म्यूजिक को लोग एक एंटिटी मानते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में कितने उसके डिविजन्स हैं। एक क्लासिकल म्यूजिक का अलग प्रोग्राम्स होते हैं, वोकल म्यूजिक का अलग सेक्शन है, क्लासिकल में भी फर्दर सब सेक्शन है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का अलग सेक्शन है, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक का अलग सेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से जो 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 मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का अलग सेक्शन है, डिवोशनल म्यूजिक का अलग सेक्शन है, पेट्रियोटिक म्यूजिक का अलग सेक्शन है। सब सेक्शंस अलग अलग हैं, सबकी प्रोग्रामिंग अलग अलग है, प्रोग्राम प्रोड्यूस अलग अलग होते हैं, प्रोग्राम के ब्रॉडकास्टिंग की टाइमिंग अलग अलग है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग दुनिया में कहीं नहीं। ठीक है, आई जी थिंक इतने इससे सबको आइडिया मिल गया होगा नहीं कि नहीं, किस बिल्कुल तरह की प्रोग्रामिंग। जी sir. There is another question coming up from Miss Preeti Priya, but before I take this question I would request all the participants to kindly put in their names in the chat box, and if you have any other questions please put your questions and do not forget to fill the feedback form. So the question from Preeti Priya is: the role of radio amplifies due to its accessibility and affordability. Please explain its role in current COVID scenario. कोविड सिनेरियो में ऑब्वियसली दोनों चीजें, जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, चूंकि आपके पास रेडियो है ऑल द टाइम, ऑल द टाइम है आपके, ज्यादातर आपके जो मोबाइल हैंडसेट में है, तो आप घर में रह के भी और मोबिलिटी में कहीं भी, रेडियो की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी मोबिलिटी है। घर में रह के भी नो डाउट आप सुन सकते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उसकी मोबिलिटी। मोबिलिटी से मतलब है आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, बस में सफर कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, रिक्शा चला रहे हैं फिर भी सुन सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे रूरल एरियाज में देखा है कि जो रिक्शा पुलर्स हैं वो आगे एक बास्केट लगा लेते हैं अपने रिक्शा में और उसमें ट्रांजिस्टर सेट रख के वो चलाते हैं। तो उसकी जो मोबिलिटी है वही उसका डायनेमिज्म है। तो ये सारे आपके पास हैं, तो आप घर में भी वैसे ही सुन सकते हैं, लेकिन आप मोबिलिटी में सबसे ज्यादा सुन सकते हैं। ये रेडियो के तो कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो अगर आप AIR FM गोल्ड सुने, रेनबो सुने, आपको लगातार कोविड से रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। उस तरह के प्रोग्राम आपको टीवी में नहीं मिलेंगे, और टीवी तो आपको अलग से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग है रेडियो की, एक और बात जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन भी तुमने पूछा और मैंने आंसर दिया, रेडियो की एक खास बात है कि रेडियो प्रोग्रामिंग बेस्ड मीडियम, टेलीविजन प्रोग्रामिंग बेस्ड मीडियम नहीं है। प्रोग्रामिंग बेस्ड मीडियम का मतलब होता है खास तौर से AIR। अगर हम फर्दर AIR और प्राइवेट FM की तुलना करें तो प्राइवेट FM चैनल्स भी उतना ज्यादा प्रोग्राम बेस्ड नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पूरी तरह से प्रोग्राम बेस्ड। प्रोग्राम बेस का मतलब हुआ कि जैसे कोविड की आपने अगर कहा, कोविड के ऊपर 3 एक्सपर्ट्स को लेके 15 मिनट का प्रोग्राम हो जाएगा। कोविड को लेके कुछ जो सर्वाइवर्स है उनका एक इंटरव्यू हो जाएगा। वो अलग अलग प्रोग्राम फॉर्मेट में यूज करेंगे। या एक टॉक प्रोग्राम आता है AIR में, उसमें उस दिन की सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जो अगर कोविड ही चल रहा है, उसके ऊपर किसी अखबार के एडिटर को बुला के और किसी एक्सपर्ट को बुला के 1-2 लोगों का एक टॉक हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम का कंसेप्ट है, ये ऑल इंडिया रेडियो का बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये किसी ने
अडॉप्ट भी नहीं किया, टेलीविजन ने अडॉप्ट भी नहीं किया, और अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। प्राइवेट एफएम चैनल्स ने, कुछ चैनल्स ने अडॉप्ट किया लिमिटेड सेंस में, लेकिन अगर हम अगेन कंपेयर करें सबकी सहूलियत के हिसाब से, मैं बता दूं कि जो एआईआर के चैनल्स हैं वो प्रोग्राम बेस्ड चैनल्स हैं, और जो प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं वो एक्चुअली एंकर बेस्ड चैनल्स। यू गॉट जी इट? सर, जी। हाँ, तो इसलिए कोविड में भी वही बात अप्लाई करती है कि आपको, मैं एफएम गोल्ड लगातार सुनता हूँ, प्राइवेट एफएम भी सुनता हूँ, तो जो एफएम गोल्ड पे जिस तरह के मुझे कोविड बेस्ड प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं वो कहीं नहीं मिलते। तो कोविड के सेंस में आप उस तरह के प्रोग्राम सुन सकते हैं लगातार। सर एक सवाल और है कि अगर कोई रेडियो इंडस्ट्री में अब जैसे करियर बनाने में इंटरेस्टेड है, तो आपको क्या लगता है उनको किस तरह के अनाउंसर्स या मैं कहूंगा प्रोग्राम आर्टिस्ट जिनको सुनना चाहिए, जो आपको लगता है कि सुनने के बाद उनकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंप्रूव होगी, उनका जो डिलीवरी स्टाइल है वो भी इंप्रूव होगा, और थोड़ा उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस तरह से अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट कर सकते हैं या अपना करियर बना सकते हैं? कोई नाम जो आपके जहन में हो? नहीं, मैं इस मतलब इस एस्पेक्ट को कभी सपोर्ट नहीं करता कि इस खास आदमी को सुने, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ना तो सिंगिंग है ना एक्टिंग है। सिंगिंग में बहुत सारे लोग हैं, उनका रोल मॉडल होता है कि उसकी तरह गाएंगे। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हम टेलीविजन चैनल्स में हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक किसी खास सिंगर को आप फॉलो करते हैं, फिर आप उसी तरह से गाने लगते हैं। इवन मुकेश जैसे सिंगर भी तलत महमूद को फॉलो करते करते वैसे ही गाने लगे, बहुत बाद में वो अपनी ओरिजिनलिटी पे आए। तो जब भी आप इसी तरह एक्टर्स हैं कि बहुत सारे एक्टर हैं, इवन अमिताभ बच्चन भी जो है तो दिलीप कुमार को फॉलो करते थे, तो दिलीप कुमार की तरह एक्टिंग करने लगे, बहुत बाद में वो अपनी ओरिजिनलिटी पे आए। तो जब आप किसी को फॉलो करते हैं, तो अगर मैं ब्रॉडकास्टिंग में भी आपको नाम बता दूं तो आप उसी की तरह बोलने की कोशिश करने लगेंगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाट आई बिलीव इन एनी मीडियम, जो भी, अगर आप एज ए मीडिया पर्सन कहीं आना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा, आप अपना ओरिजिनलिटी के साथ आइए। हाँ, आप क्या कर सकते हैं अपने को बेहतर बनाने के लिए? आपको अगर अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना है, भाषा को अच्छा बनाना है, तो आप ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज प्रोग्राम्स को सुना करिए, और न्यूज बुलेटिन्स को, रादर मैं और प्रिसाइजली कहूँ, न्यूज बुलेटिन्स को सुना करिए। तो आपको थोड़ा भाषा की समझ आ जाएगी, शब्दों की समझ आ जाएगी। वो एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, या और भी कुछ जो चीजें हैं, जैसे कहाँ पे कितना मॉड्यूलेशन आपको लाना है, कहाँ पे पॉजेज लाने हैं, ये सारी चीजें आप सुन के सीख सकते हैं। बट डोंट कॉपी एनीबडी, डोंट फॉलो एनीबडी, सिंपली ट्राई टू लर्न द थिंग्स व्हिच कैन हेल्प यू इन इन द मेकिंग ऑफ ए बेटर ब्रॉडकास्ट। I think thank you so much, sir. I would again request all the participants to kindly fill the feedback form, which is available in the chat box. And I would also request to kindly put in your names in the chat box. Before we formally conclude this special webinar on radio, I would like to inform once again everyone that we shall be coming up with more webinars like this. We shall be coming up with a webinar which would be focusing on television. That would be broadcast, or I would say that would be available on 22nd of July between 3 to 4. Then we will be focusing on language media. That would be available on Sunday, that is 26th of July. The timing would be same, 3 to 4. And then finally we'll be concluding with the digital and social media webinar that would be organized on Wednesday, that is 29th of July between 3 to 4. So with those words, I think we can conclude this program, and I would like to thank Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, for sharing his words of wisdom and his experience of the radio industry, and guiding all the participants, all the interested students who want to make a career in radio. So thank you very much, sir, for sharing your experience and giving us time for this. Thank you very much. At Delhi Metropolitan Education DME, we have an excellent infrastructure. We have a studio for production which is